جی علینا، بہت ایک خوشی ہوئی ایک تو دیکھ کے کہ یکسوئی کے ساتھ پی ایم کام کر رہے ہیں. اور آج جو ٹیلیتھون تھا، احساس پرائم منسٹر فنڈ ٹیلیتھون، اس میں 6-7 چینلز نے اس کی میزبانی کی تھی، جس میں بول بھی شامل تھا. اور آپ نے جیسے کہا بول کی نمائندگی وہاں پر میں کر رہا تھا. لیکن جو پرائم منسٹر نے اپنی جو گفتگو کی، اس گفتگو میں بہت ساری، حالانکہ یہ ایس او پیز میں طے تھا کہ کوئی پالیٹکس پر بات نہیں ہوئی، لیکن کوشش کی گئی، لیکن نہیں ایکچولی کوشش بھی نہیں ہوئی. وہ بڑے لائٹر نوٹ میں وہ سوال کامران شاہد صاحب نے کیا. بڑا نہیں میں سمجھتا ہوں کہ سارے جو اینکرز تھے وہاں پہ، جو ماحول تھا، انہوں نے بہت یہ کوشش کی کہ جو گفتگو ایسی ہو جس میں کہ کوئی ڈویژن کی بات نہ ہو. حامد میر صاحب تھے اور جیو ٹیلی ویژن کا، لیکن انہوں نے جس انداز میں انہوں نے بھی کنڈکٹ کیا، تو یہ ورتھ اپریسیٹنگ کہ بہت زیادہ ایک جو آپ کہتے ہیں نا یونٹی، فیتھ، ڈسپلن، ایک یونٹی نظر آ رہی، وہ مقصد ہمیں نظر آ رہا تھا کہ قوم اور اس کی بنیادی وجہ عمران خان صاحب کی موجودگی، ان کی جو قداور شخصیت ہے، جس انداز میں انہوں نے کنڈکٹ کیا. اور اگرچہ یہ نان پولیٹیکل کنورسیشن تھی، لیکن 4-5 چیزیں اس میں بڑی پولیٹیکل تھیں جو جوابات سے ہمیں معلوم ہوئی. ایک تو میں وہ جو شیئر کرنا چاہتا ہوں، ذرا اس کو ایکسپلین بھی کر دوں گا کہ عمران خان صاحب کسی قیمت پر بھی کوئی این آر او دینے کے لیے کسی کو تیار نہیں، کوئی کسی طرح بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں. جو اپوزیشن والا سوال، جی اپوزیشن پہ سوال ہوا کہ آپ ان کو ساتھ ملا لیں. کامران شاہ صاحب نے ان سے کہا کہ آپ خفا ہو جائیں گے لیکن مجھے پھر بھی کرنا ہے یہ. تو اس سوال کے جواب میں یہ کہا پرائم منسٹر نے کہ انہیں میں اگر اس میں شامل کر لوں تو آپ کا مطلب ہے کہ یہ چندہ بالکل ڈاؤن ہو جائے، ڈکلائن ہو جائے. تو ایک ان کا جو مائنڈ ہے، ان کی جو سوچ ہے اپوزیشن کے حوالے سے، اپوزیشن کے حوالے سے نہیں، دو بڑی جماعتوں کے سربراہوں کے کرپشن کے حوالے سے جو ان کی سوچ ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے، زرداری صاحب یا نواز شریف صاحب، شہباز صاحب. تو انہوں نے کہا کہ ایک ہی چیز انہوں نے کہی، ایک لائن انہوں نے بولی بیچ میں کہ اگر کیونکہ سوال یہ تھا کہ اگر وہ ساتھ ہوں تو ان میں سے کوئی ہزاروں ارب روپے دے سکتا ہے. تو پرائم منسٹر نے کہا اچھا آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے ڈونیشن بھی ڈاؤن ہو جائے، لیکن پھر انہوں نے کہا اگر دینا ہے تو وہ لوٹا دیں پیسے. یعنی ایک ہی صورت میں ان کی جان بخشی ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی وہ پلی بارگین کر لیں، اگر وہ پیسے واپس کریں. یہ آج بھی پرائم منسٹر نے اس بات کو بالکل ایک اور موقع دیا، ایک یعنی کھل کر یہ بات کہہ دی ہے کہ میں کوئی این آر او اور یہ جو معافی نامہ اور یہ جو کہ سب ساتھ مل کر چلو اور اس چکر میں اپوزیشن کو ساتھ لے کے، عمران خان یہ کام کرنے والا نہیں ہے. ایک تو یہ بہت بڑی اس میں پولیٹیکل خبر تھی. دوسرا، انہوں نے جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو کل گفتگو ہوئی، اس کے حوالے سے جو انہوں نے جو ڈائریکٹ کویسچن تھا اس پر تو انہوں نے جواب نہیں دیا، لیکن گفتگو کے مختلف حصوں میں انہوں نے 2-3 باتیں کہیں. کرونا کے حوالے سے بھی کہا انہوں نے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے بیسیکلی جو یہ پاکستان کا جو آج جو خبر دی انہوں نے کہ یہ جو 75 کنٹریز آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک نے رکھے ہیں جن کو ریلیف ملے گا، اس کے حوالے سے پرائم منسٹر نے آج بتایا کہ انہوں نے اس کے لیے بھرپور لابنگ کی. دیکھیں نا، اس کے لیے جو ہمارے حفیظ شیخ صاحب ہیں وہ بھی اس کا کریڈٹ لینا چاہ رہے تھے، شاہ محمود قریشی صاحب بھی اس کا کریڈٹ لینا چاہ رہے تھے. ہم نے اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ یہ عمران خان صاحب ہیں جن کی بدولت یہ ملا. اور آج خان صاحب نے بتایا کہ میں نے انگلا مرکل جو جرمن چانسلر ہے اس سے بات کی، پھر ہم نے امریکن سے بات کی، اور ایکچولی یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا فون تھا میں اس کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا تھا. تو ایک تو یہ مجھے اندازہ ہوا کہ یہ جو فون تھا، میں یہ اب گیس ورک کر رہا ہوں جو ساری ان کی گفتگو ہوئی، کہ یہ فون پاکستان، یہ پرائم منسٹر عمران خان نے کیا شکریہ ادا کرنے کے لیے. انہوں نے بیسیکلی ایک یہ سب سے بڑا شکریہ وہ ادا کرنا چاہ رہے تھے کہ جو پاکستان کو ان ممالک میں یہ قومی یہ جو انٹرنیشنل مالیاتی ادارے ہیں، کیونکہ یہ سارے دیکھیں یہ سارے پولیٹیکل بینکس ہیں، ورلڈ بینک، آئی ایم ایف، یہ ساری جو امداد ہے یہ پولیٹیکل ہے، اور اس میں عمران خان کی جو کوششیں تھیں ان کو اکنالج کیا گیا. تو وہ اس پر ٹرمپ کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہے تھے. لیکن اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور بات بتائی کہ ٹرمپ بھی بڑا پریشان ہے کہ اس نے کہا کہ وہ 2 ٹریلین کا پیکج دیا اور ایک اور 2 ٹریلین کا پیکج وہ دے رہا ہے. اب یہ امریکہ کے حوالے سے اگر اوورسیز پاکستانی امریکہ میں ہمیں کوئی 2 لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ان کے لیے بڑا پیکج
2 ट्रिलियन का एक और announcement हो सकती है। और अनाउंसमेंट हो नहीं सकती, दे आर वर्किंग ऑन इट, क्योंकि जो पहला कर्जा आया है वो सारा बड़े बिग बिजनेसेस को चला गया। छोटा बिजनेसमैन जो है वहां पे अमेरिका में अभी वहीं पे बेयार मददगार खड़ा है। तो लेकिन ये इतने जो, और उसको खतरा है ट्रंप को, इसलिए ये पार्शली अमेरिका खोलने भी जा रहा है, यानी वो खुल रहा है अमेरिका, और इसके लिए कि ये एक बड़ा उनके लिए ये एक मामला है। तो उन्होंने ये बताया कि साथ में ये भी कहा कि अब अमेरिका पाकिस्तान को वेंटिलेटर्स और कुछ इस तरह का सामान भी देने जा रहा है। तो ये एक उन्होंने जो ट्रंप के साथ जो उनकी थी उससे थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ कि वो किस अंदाज में क्या गुफ्तगू हुई उनकी। अच्छा, फिर अब एक और जो तीसरी बात जो हमें पता चली, उसमें सवाल ये हुआ कि आपने कंस्ट्रक्शन कंपनी में कंस्ट्रक्शन को इंडस्ट्री का शोबा दे दिया, दर्जा दे दिया, और बड़ा आप इंसेंटिव दे रहे हैं। एक बड़ा इंसेंटिव ये है कि नो क्वेश्चन आस्क्ड। हमने भी अपने प्रोग्राम में इस पर बड़ी तनकीद की थी कि यार ये तो नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये तमाम जो नई इन्वेस्टमेंट हो हर शोबे में, मैं ये कहूँ कि नो क्वेश्चन आस्क्ड। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि फैटफ और ये जो टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से पाकिस्तान का नाम जो ग्रे लिस्ट में, तो उससे बचने के लिए हमें ये सब कुछ करना पड़ रहा था। लेकिन हर क्राइसिस में एक समटाइम अल्लाह ताला की ज़ात विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करती है। तो अभी इस सारे क्राइसिस में ये एक नई विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है कि जिसमें हम शायद ये कर सकें कि नो क्वेश्चन आस्क्ड की बुनियाद पर हर शोबे में हम इन्वेस्टमेंट को ले आएँ। तो ये एक पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एक बूस्ट होगा, पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी कहानी होगी। तो एक उन्होंने ये बात भी जो इसी कन्वर्सेशन में कि आने वाले दिनों में बड़ी चीज़ है, लेकिन FATF के हवाले से भी उनको काफ़ी चीज़ें नहीं वो है, लेकिन वो अब देखें ना वो सारे रूल सस्पेंड हो रहे हैं। देखें इस वक्त मुल्क, पूरी दुनिया में ये पैंडेमिक है, पूरी दुनिया में एक इमरजेंसी है। वो बहुत सारी चीज़ें जो नहीं कर सकता था पाकिस्तान पहले, शायद अब कर सके। इसीलिए उन्होंने कहा कि ये एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है। और फिर उन्होंने कहा कि जो आप फैसले खौफ में और पैनिक में उठाते हैं उनका नतीजा बहुत बुरा होता है, जैसा इंडिया में हुआ कि वहाँ पर उन्होंने पैनिक में आकर तो टोटल कर्फ्यू लगा दिया। और क्या हुआ कि अब बताया जा रहा है कि वहाँ पे 10 करोड़ जो लोग हैं वो बेरोज़गार दिहाड़ीदार, उनके पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए। लेकिन आज एक उन्होंने जो बात बताई है ना अलीना अपनी इस गुफ्तगू में, उसने बड़ा ही टच द हार्ट, मैं वो सुन रहा था। सवाल था पनाह गाहों के हवाले से। तो उन्होंने कहा कि पिछले 1-2 हफ्तों से हमें हम जो डाटा आ रहा है उसके मुताबिक पहले जितने लोग खाना खाते थे ना, अब उनसे 3 गुना ज़्यादा लोग खाना खा रहे। तो उन्होंने ये कहा कि ऐसा लगता है कि वो सफ़ेद पोश लोग जो पहले शायद अपनी गुर्बत को छुपा के मेहनत मजदूरी करके गुजारा कर रहे थे, अब क्योंकि पाकिस्तान में ज़ाहिर है एक वो लॉकडाउन है और दिहाड़ीदार काम नहीं कर सकता, तो वो सफ़ेद पोश लोग अब शायद उन पनाह गाँव में आके खाना खाते हैं। तो ये एक जो सोसाइटी की उन्होंने जो एक पिक्चर थी वो उन्होंने, क्योंकि उनको डाटा शेयर होता है ना बेसिकली डिफरेंट और दूसरा उन्होंने जो इंडिया दिया ना, अब देखिए मैं आपको बताऊं, लॉकडाउन तो ख़त्म होगा। आज मैं प्राइम मिनिस्टर साहब की गुफ्तगू से मुझे ये यकीन है कि लॉकडाउन ख़त्म होगा। और प्राइम मिनिस्टर जो पाकिस्तानी कौम की साइकी है उसको पूरी तरह समझते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये अब मसाजिद का मामला था, तो जो SOP पर अमल दरामद नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर होगी। लेकिन हमें ये पता था कि अब मुसलमानों को मसाजिद में जाने से नहीं रोक सकते, इन्होंने जाना ही जाना। तो ये अब रमज़ान में इधर लोग नमाज़ें पढ़ने जा रहे हैं, हम पुलिस को भेजें, लोगों को पकड़ के जेलों में डालें, तो ये तो कोई बात नहीं, रमज़ान में ऐसा करें। तो उन्होंने कहा कि ये तो हमें ये करना ही करना। लेकिन उन्होंने एक टर्म में या मस्जिद नबवी में इस चीज़ को फॉलो किया जा सकता है, तो पाकिस्तान में भी किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने आज एक टर्म यूज़ की, स्मार्ट लॉकडाउन। गवर्नमेंट की इंटेंशन क्या है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो उन्होंने बात कही कि जिस एरिया में कोरोना है वो तो टोटल लॉकडाउन कर देंगे, बाकी स्मार्ट लॉकडाउन होगा। यानी आप जो SOPs बना के सोशल डिस्टेंसिंग के और एहतियात, क्योंकि इसका इमरान खान की नज़र में जो कि बिल्कुल राइटली ही पॉइंटेड आउट कि इसका इलाज सिर्फ एक है कि आप एहतियात करें। ये नहीं हो सकता कि आप घरों में बंद होकर बैठ जाएं, आप एहतियात करें। और वो एहतियात ही बेसिकली इस बात की ज़मानत है कि आप आगे बढ़ेंगे। वगरना मैंने उनसे सवाल किया कि आपकी
बिगेस्ट वरी क्या है, तो उन्होंने पता क्या कहा, एंड मैं आई वांटेड टू हियर दिस फ्रॉम कैप्टन्स माउथ कि मेरी बिगेस्ट वरी क्या है, वो गरीब आदमी जिसको रोजगार नहीं मिल रहा, जिसका रोजगार मुतासर हो चुका है, और अभी जो कुछ हमने लॉकडाउन और जो कुछ कर रहे हैं, इसका जो रिजल्ट है या इसका जो इम्पैक्ट है वो आने वाले दिनों में नजर आएगा, अभी नहीं आ रहा, और कहा जा रहा है मई में ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो ही इज फुली अवेयर, मिलकर वो काम करने की बात कर रहे हैं। जो मुराद अली शाह साहब का जो फैसला था टोटल लॉकडाउन का सिंध का, उन्होंने कहा कि वो पैनिक में किया, उन्होंने नहीं ऐसा करना चाहिए था, इंडिया की मिसाल दी, क्योंकि अगर आप लोगों को घरों में बंद कर देंगे तो खाएंगे लोग कहाँ से, बड़ी एक ज़बरदस्त बात है। तो बुनियादी तौर पर जो हमें जो चीज़ नज़र आई आज प्राइम मिनिस्टर की गुफ्तगू के कि ये जो क्राइसिस है ये बहुत लंबा है, ये बहुत जल्दी हल होने वाला नहीं है, इसको कैसे आप हल करेंगे, इसको आप हल इस तरह से करेंगे कि स्मार्ट लॉकडाउन, जो एरिया आइडेंटिफाई होगा वहाँ पे टोटल लॉकडाउन, बाकी बिजनेसेस को खुलने की इजाज़त होगी। इस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों पर ज़्यादा है कि एक एज ए रिस्पॉन्सिबल नेशन हमें इमर्ज करना है, क्योंकि ये बीमारी जिसको खाती है बर्बाद कर देती है उसको, और ये बीमारी इसके क्या इम्पैक्ट है, अभी हम अमेरिका में जाएंगे डॉक्टरों के पास। आप सही कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं ना आप उस इलाके की निशानदेही की जाएगी, लेकिन उस इलाके की निशानदेही करने के लिए हमारी कैपेसिटी होनी चाहिए कि हम मैक्सिमम टेस्ट करें। जब हम मैक्सिमम टेस्ट करेंगे तभी हमारे पास डाटा आएगा। आपका सवाल बड़ा वैलिड है। जी जी, और बलूचिस्तान में आपके सामने है, केपीके में आपके सामने सूरत हाल है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। प्राइम मिनिस्टर ने जो बात बताई, प्राइम मिनिस्टर आज ISI के हेडक्वार्टर भी गए, बिल्कुल ऐसा, आर्मी चीफ के साथ, बिल्कुल ऐसा। अच्छा, उसमें आपने खबर पढ़ी होगी कि कोरोना पर उनको ब्रीफिंग दी गई। अब कोरोना पर क्या ब्रीफिंग दी गई होगी, प्राइम मिनिस्टर ने आज ये बताया है कि हम जो मरीज हैं कोरोना के, उनको ट्रैक और फॉलो करने के लिए वो टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं जो दहशतगर्दों को ट्रैक डाउन करते थे। ISI देखें, समझ आ गई, इनोवेटिव होता है ना इंसान। हाँ, होना। तो पाकिस्तान में मरीजों को ट्रैक डाउन करने के लिए, उनको फॉलो करने के लिए, देखने के लिए कि वो कहाँ कहाँ गए हैं, क्या क्या हो रहा है, कौन सा इलाका ज्यादा मुतासर है, ये पाकिस्तान की ISI। देखें ISI बुरी क्यों लगती है इंडिया को, क्यों बुरी लगती है अमेरिका को, क्यों ISI को गालियां निकालते हैं, क्यों ये कहते हैं। देखिए अमेरिका का आइन ये कहता है कि खुद जो अमेरिकन जर्नलिस्ट है, अमेरिकन सिटीजन है, बाय लॉ, बाय देयर कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर बाउंड टू वर्क विद देयर इंटेलिजेंस एजेंसी। ठीक है, ये इनबेड हो जाते हैं, एम्बेडेड जर्नलिस्ट जो उनके साथ जाते हैं उन्हीं के मुताबिक रिपोर्टिंग करते हैं, बिकॉज दिस इज द डिमांड ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी। तो पाकिस्तान में ISI जो है इस वक्त पाकिस्तान के लोगों के लिए, इस कोरोना से मुकाबले के लिए, वो जो सारा सिस्टम, कोरोना को ISI ने आइडेंटिफाई कर दिया है एज ए दहशतगर्द। बिल्कुल ऐसा है, आप इसको इस तरह से लें। तो इस वक्त कोरोना जो है जहां पर भी अटैक कर रही है, वो ISI उसको इस तरीके से देख रही है कि ये जो हमारे शहरी इस वक्त जिनके अंदर कोरोना चला गया है, ये इस वक्त दुश्मन की अटैक में है, तो ये कहां कहां जा रहे हैं, कहां कहां ये कोरोना आगे जा सकता है। तो उसके लिए जो ISI का सिस्टम है उसको इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान की हुकूमत। और देखें ये एक एक्सीलेंट कोलैबोरेशन है पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री। क्या आप कोरोना के खौफ से हैं डिप्रेशन का शिकार? अब ना हो परेशान, बोल महफूज पाकिस्तान के तहत डॉक्टर ऑनलाइन का आगाज हो चुका है। माहिरीन सेहत से पूछें कोरोना से मुतालिक अपने सवालात। राब्ते के लिए फोन उठाएं और डायल करें 021-350-91425, 021-3509-1433। लाइव कॉल्स होंगी दोपहर 2 से 3 के दरमियान। आप अपने सवालात व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं 0337-0310-377, और रह जाने वाले सवालात के जवाबात 24 घंटे ब्रेक में नशर किए जाएंगे। इस पैगाम को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करें और अपने प्यारों को टैग करें और इस नंबर पर व्हाट्सएप करें ताकि हम ये पैगाम आपको और आपके प्यारों को भेजें। क्या पता किसकी मदद हो जाए। तो जुड़े रहिए बोल के साथ, क्योंकि बोल का पैगाम महफूज पाकिस्तान।